Hello students. So in this lecture we are moving forward towards the discussion of types of intermolecular forces. Basically in last lecture we just introduced you what are intermolecular forces. What are that? क्या थे intermolecular forces बेटा आपको पता है attractive or repulsive forces between interacting particles are called intermolecular forces. Okay, and we not consider electrostatic force of attraction under the category of intermolecular forces. The reason behind it was that this force, electrostatic force of attraction, just existing between two opposite charges separating by the distance r. But we are talking about the molecules, so we are ignoring the electrostatic force of attraction, not taking under the category of intermolecular forces. Now we are moving forward that these intermolecular forces are of two types: repulsive or attractive. So the attractive intermolecular forces are called van der Waals forces of attraction. Who gave this? Who gave these forces? John van der Waals. It's the name of scientist who gave it, beta. And actually he told us that how the deviation of real gas from ideal gas. The deviation of real gas from ideal gas by using these forces, by using these van der Waals forces. So these forces actually named after him, van der Waals forces. Actually these are very weak forces. These van der Waals forces are also known as London forces or dispersion forces. Okay, so now I will categorize these van der Waals forces generally are of three types. Just put a heading there. ये तीन तरीके के होंगे बेटा. van der Waals forces are of three types. First one, London forces or dispersion forces. और इसी का तीसरा नाम भी है induced dipole forces. क्लियर दिख रहा है? पूरा कवर हो रहा है कैमरे में. ओके, induced dipole forces. Second one, dipole interactions या forces, dipole interactions. And third one is induced dipole forces. One more attractive force is there, and it is called hydrogen bonding. But it is not
we not count this under the category of van der Waals forces. It is totally a different concept and a different part, and we already discussed about this in chemical bonding. What is hydrogen bonding, how it exists, and if hydrogen bond is exist between two molecules like this A, H and B, then what will be the bond energy of this hydrogen bond? It could be 10 to 100 kilojoule per mole. We already discussed all these points. Okay, so in this lecture I will not take this part, hydrogen bonding. We will discuss only these three parts and the relation of these three with thermal energy. So let's start. I will start all these together. Okay. So make three columns, put one on one side London forces or dispersion forces, it's same, and on another side dipole interactions, it's second one, and the third one is dipole induced dipole interactions. Interaction means forces. तीनों की हम कंपेरेटिव स्टडी करेंगे बेटा. चलो एक एक करके स्टार्ट करें. लंडन फोर्सेस, these are the weakest van der Waals forces existing between molecules. Okay, how? Just see. In this previously means in starting molecules are totally spherical. It means the charge density is distributed uniformly throughout the molecule. That's why we are representing molecules by symmetrical, by spherical. Okay, it is A and it is B. Now what happens at some extent, by a chance and for a very short time period, suddenly what happened, when they come together, when we keep them together only for very short time period, the whole charge density of this A molecule comes on this side. Okay, it means if whole charge density come on this side, then the other part is vacant from the charge, that is from the negative charge. It means it all becomes positive now. Okay, so in initial here was no dipole, only symmetrical charge distribution is there. So there was no dipole in starting. But what happened? Suddenly, by the influence of B, or for a small time, at any point, कभी तो ऐसा समय होगा कि यहाँ पे कुछ ये मॉलिक्यूल का चार्ज इधर उधर हो, और कोई ऐसा समय आ सकता है कि यहाँ पे नेगेटिव अलग हो जाए, पॉजिटिव अलग हो जाए. So what happens actually here, dipole generated, and you know what is exactly dipole. Dipole का मतलब होता है बेटा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एकदम सेपरेट तरीके से अलग हट जाए, इसे डाइपोल बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ, सडनली फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड डाइपोल जनरेट हुआ, जिसके कारण ये नेगेटिव इधर आ गया, ठीक है, और पॉजिटिव उधर चला गया. अब इस नेगेटिव के इन्फ्लुएंस से क्या होगा, इस वाले ये जो मॉलिक्यूल है बी, इसका पूरा पॉजिटिव चार्ज बेटा इधर आ जाएगा इस नेगेटिव के इन्फ्लुएंस से. इज इट क्लियर? पूरा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और नेगेटिव इधर आ जाएगा. ये सेकंड स्टेप बनाया मैंने. पहले स्टेप में क्या करना है, आपको पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है. सेकंड स्टेप है ये स्टेप सेकंड है. इज इट क्लियर?
ठीक है, तो अब क्या हुआ बेटा, डायपोल जनरेट हो गया, जैसे ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। तो ये इस इंटरेक्शन के कारण बहुत कम टाइम के लिए होता है, बहुत वीक फोर्सेस है। फिर बोल रहा हूं, ऐसा बिल्कुल वो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उससे तो बहुत वीक होता है। ये तो बहुत कम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा बहुत छोटे टाइम के लिए, ठीक है। इसलिए इट इज दैट दिस फोर्स इज कॉल्ड लंडन फोर्सेस। और as you know, uniformly symmetrical charge density is dispersed in to make dipole, so it is also known as dispersion forces. Okay, if you want to make definition, then you could see the definition here. Force of attraction, the force of attraction between two temporary dipoles is called London forces, या are called London forces. Okay, so it's the definition. Moreover, you have to remember one more point regarding this. You have to remember one more point regarding this, and it is inversely proportional to the 1/6 power of the distance between them. 1/6 power of the distance between them. In short, अगर मैं लिखना चाहूं तो जो लंदन फोर्सेस होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं 1/r6 के। बहुत वीक फोर्स होते हैं, ठीक है। केवल इतना आपको याद रखना है बेटा इसमें, और कुछ नहीं। समझ में आ गया होगा आपके लंदन फोर्सेस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से लिख लो, क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट, इट इज डाइपोल इंटरेक्शन। वर्ड से ही आपको समझना होगा, वर्ड इटसेल्फ सिग्निफाइज व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस आर देयर। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ HCl molecule. I will explain this according to molecule. There is one molecule of HCl, so H is there and Cl is there. I am taking the example HCl. Okay, HCl. If it's a molecule, HCl molecule, okay. Now what happened in chlorine? Chlorine has higher electronegativity, so bonded electrons shifts towards chlorine and it generates partial negative charge on chlorine and partial positive charge on hydrogen. Partial negative charge on chlorine and partial positive charge on hydrogen. And keep one thing in your mind, that partial charge is much lesser than the standard charge of an electron, that is 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इससे ये काफी कम होता है जो पार्शियल चार्ज जनरेट होता है, ठीक है। क्लियर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो, जब क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खिसकी तो ये जो HCl का मॉलिक्यूल मैंने बनाया हुआ है, आप बताओ क्या होगा? पूरे के पूरे नेगेटिव चार्ज क्लोरीन की तरफ आने लगेंगे। क्लियर बेटा, क्लोरीन की तरफ आने लगेंगे और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा स्फेरिकल से ओवल शेप ले लेगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा, दैट इज H and Cl, इट इज डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो एक डाइपोल बन गया। ये तो एक HCl की बात है। इसके साइड में
दूसरा डायपोल भी होगा। अगर HCl का सॉल्यूशन मेरे पास है तो एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं HCl का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसके साइड में बेटा दूसरा HCl का डायपोल भी होगा इस तरीके से, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इज इट क्लियर? ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इनके बीच में डायपोल्स के बीच में बेटा इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। इज इट क्लियर बेटा? ओके, नाउ अ पॉइंट you have to remember that this dipole dipole interaction, this dipole dipole interaction is quite stronger than London forces, क्योंकि यहाँ पे तो डायपोल था ही नहीं, बहुत कम समय के लिए आता है, तो जो इंटरेक्शन फोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, हीट भी नहीं करनी पड़ती है तब तक ये बॉन्ड टूट जाएंगे। ठीक है, हीट भी नहीं करनी पड़ेगी, सेक करोगे थोड़ा सा वार्म करोगे बॉन्ड्स टूट जाएंगे। क्लियर? लेकिन ये उनसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस आर क्वाइट स्ट्रोंगर देन लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस। और एक और नाम था ना इसका, देखो इंड्यूस्ड डायपोल भी इसी का नाम है, इंड्यूस्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस, ये भी इसी का नाम है, क्योंकि पहले कोई डायपोल नहीं था, एक के अंदर डायपोल इंड्यूस्ड हुआ, प्रभाव से इंड्यूस हुआ है, प्रभाव मतलब डायपोल जनरेट हुआ है किसी प्रभाव से थोड़ी देर के लिए, दूसरे के अंदर उसकी वजह से जनरेट हुआ, उनको इंटरेक्शंस को इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन बोल सकते हैं। देन लंडन फोर्सेस। क्लियर? तो और एक प्रैक्टिकल वैल्यू याद रखना कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस is about inversely proportional to 1/r³, जबकि ये क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ था। तो इससे ये स्ट्रॉन्ग है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, याद रखना बेटा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर? हाँ, ऐसा भी होता है डायपोल डायपोल के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है, इसको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल, ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करके रहते हैं। पहला तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ये भी इसके साथ देखने को मिल सकता है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, है ना, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस में ये भी आपको लंडन फोर्सेस भी शामिल दिख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो अट्रैक्शन लगता है वो कंक्लूसिव अट्रैक्शन लगता है दो का, लंडन फोर्सेस का और डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस का, ऐसे मॉलिक्यूल्स में, पोलर मॉलिक्यूल्स में। पहले यहाँ पे कोई पोलरिटी नहीं थी, यहाँ पे ऑलरेडी पोलरिटी रहती है। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम आते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस पे। थर्ड पार्ट, देखो तुम सोच रहे होगे बेटा एग्जाम्पल नहीं बताई सर आपने, तो इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो कि ये एक H2 का मॉलिक्यूल है, ये एक H2 का मॉलिक्यूल है, दो H2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ऐसा होगा। ठीक है, अब मान लो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इसका मतलब है एक हमारे पास डायपोल है और उस डायपोल की वजह से, मतलब एक डायपोल है, यस, इट्स for example HCl molecule is dipole polar molecule, so dipole will be there, that is partial positive partial negative will be there। ये क्या है हमारे पास, ऑलरेडी डायपोल है। एक हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, मान लो ये H2 का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, दैट इज डाइहाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास डायपोल नहीं है, ये क्या खाली पहले सिंपल मॉलिक्यूल है। अब देखो होगा क्या, पहले ये दोनों दूर दूर रखे थे, अब मैं क्या करता हूं, ये डायपोल के पास इस H2 के मॉलिक्यूल को लेके आ रहा हूं, तो क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव यहाँ जनरेट है इसमें, तो मतलब पूरा नेगेटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल का लगभग ये जोन में रहेगा। इस नेगेटिव के कारण क्या होगा, ये इसमें क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पूरी तरह से बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए स्फेरिकल सिमेट्रिकल डेंसिटी दिख रही है। स्फेरिकल मतलब सिमेट्रिकल चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। तो अब इसके नेगेटिव के प्रभाव से क्या होगा, जब ये इसके पास आया तो इस नेगेटिव के कारण इसका पूरा पॉजिटिव इधर आने लगेगा, जब ये दोनों क्या है पास में आए, पहले दूर दूर थे तब कोई नहीं था, लेकिन जब पास में आ गए तो पॉजिटिव इधर आने लगेगा और नेगेटिव जो बचा हुआ है वो
इधर की तरफ जनरेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसके अंदर भी क्या होगा बेटा आपको, और जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा होगा तो ये क्या है, ओवल शेप ले लेगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये भी H2 का मॉलिक्यूल, मतलब पॉजिटिव इधर की तरफ और नेगेटिव इधर की तरफ, ऐसा हो जाएगा ये। तो इसके अंदर भी एक डायपोल के कारण, एक डायपोल के पास आने से, उसके प्रभाव से एक मॉलिक्यूल दूसरा भी क्या बन जाता है, डायपोल बन जाता है। इसके अंदर भी क्या हो गया, डायपोल इंड्यूस्ड हो गया, मतलब उसके प्रभाव से वो डायपोल बन गया। सो दीज टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। एक डायपोल है और दूसरा डायपोल नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव में आने से ये भी डायपोल बन जाता है, उसी को बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? ओके। मोर ओवर if I will talk the relation like this, so dipole induced dipole interactions, dipole मैं इसे मिटा दूं, dipole induced dipole interactions inversely proportional to 1/R6. Please keep it in your mind, important। 1/R6 कुछ नहीं है, ये से R मतलब इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच की दूरी है, ये खाली आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा। क्लियर? ठीक है बेटा। और एक बात बता दें हम आपको, ये किस किस के बीच में लग रहा था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो ये सब पॉइंट ऐड करते चले जाओ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर था। यहाँ पे क्या है, एक पोलर था और दूसरा भी, यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल बनाया था, दोनों HCl के मॉलिक्यूल्स थे, तो आपने देखा होगा, ठीक है, दोनों क्या थे, HCl के ही मॉलिक्यूल्स थे, इस तरीके से, ठीक है, H+ और Cl-। तो यहाँ पे क्या था, दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स थे। These interactions exist between two polar molecules and this one is polar and another is non-polar ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस केस में जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी इस डायपोल की, है ना, जितनी ज्यादा इसकी पोलराइजेबिलिटी होगी, जितनी जल्दी ये पोलर, अच्छा, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी इस पोलर मॉलिक्यूल की, उतना ही ये इसको जल्दी पोलर बनाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल को। तो इसमें आप एक पॉइंट लिख लो, हाई पोलराइजेबिलिटी increases the strength of attraction। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ में आ गए बेटा आपके। नेक्स्ट पार्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बुक के हिसाब से, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए, इसलिए मैं उसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं अब आ रहा हूं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे, एंड दैट इज रिलेशन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन के बारे में एक बार डिस्कशन पहले ही हो चुका है। रिलेशन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वैसे इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक बार चर्चा कर चुका हूं, लेकिन मैं क्विक रिवीजन करवाऊंगा आपको। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी, जरा देखते हैं क्या है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वो आप जानते हैं। थर्मल एनर्जी क्या है, सिंपल, थर्मल एनर्जी डेफिनेशन लिख लो। थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग, किससे जनरेट होती है, अराइजिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ इट्स
एटम्स और मॉलिक्यूल्स। देखो एक बीकर है मेरे पास, इसके मॉलिक्यूल्स यहां से यहां मूव करेंगे, कोई यहां मूव करेगा, कोई यहां मूव करेगा। तो जब ये मूव करते हैं तो क्या एनर्जी जनरेट होती है हर एक के मूवमेंट से। मान लो इसके से E1, दूसरे मॉलिक्यूल के से E2, तीसरे के से E3। तो जो थर्मल एनर्जी है वो होती है जो ये टोटल एनर्जी जनरेट हो रही है इनके मूवमेंट से, दैट इज E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, इसे ही क्या बोल देते हैं हम, थर्मल एनर्जी। क्या समझ में आ गई बेटा बात, थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब एक पॉइंट, जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा यहाँ पे, देखो जितना ज्यादा मैं यहाँ पे टेम्परेचर दूं उतना ज्यादा मोशन होगा पार्टिकल्स का और उतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी। इसका मतलब जो थर्मल एनर्जी है, पॉइंट्स लिखते जाओ, थर्मल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। किसके बेटा, टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं सॉलिड स्टेट की और लिक्विड की और गैसियस स्टेट की, तो बताओ सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स कहां मूव करते हैं, गैसियस स्टेट में मूव कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, और उससे कम लिक्विड में, उससे कम सॉलिड में। तो अगर मैं सॉलिड से लिक्विड से गैस की तरफ मूव करूं, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं थर्मल एनर्जी क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी। थर्मल एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीजेस। ठीक है, और अगर मैं गैस से लिक्विड से सॉलिड की तरफ मूव करता हूं तो थर्मल एनर्जी क्या होती जाएगी, सॉरी थर्मल एनर्जी, सॉलिड से लिक्विड से गैस की तरफ मूव करता हूं तो थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करता हूं, अट्रैक्शन फोर्सेस की, तो तुम्हें पता है सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लगता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में, तभी तो वो आपस में एक दूसरे के पास बैठेंगे ही नहीं, एक दूसरे को चाहे मार दो तोड़ दो, लकड़ी को बीच में से तोड़ना पड़ता है या काटना पड़ता है तभी अलग होती है, नहीं तो ऐसे आराम से अलग नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं, सो गैस से लिक्विड से सॉलिड की तरफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगे बेटा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीजेस। ठीक है, देखो मैं क्या कहना चाहता हूं अल्टीमेटली, कि आपने देखा होगा कुछ गैसेज हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, उसे लिक्विड बनाया जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, HCl गैस से, है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, उसे इस तरीके से कंप्रेस करना पड़ेगा, उसका लिक्विफिकेशन होता है। लिक्विफिकेशन में और कुछ नहीं होता है, उसकी थर्मल एनर्जी डिक्रीज की जाती है, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कंट्रोल किया जाता है और उसे लिक्विड की तरफ धकेला जाता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और उसकी थर्मल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। इज इट क्लियर बेटा। और अगर सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं, जैसे आइस से वाटर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है बेटा, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो रहे हैं। क्लियर, आपके समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो ये थे बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड इट्स टाइप एंड द रिलेशन बिटवीन थर्मल एनर्जी एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब ये जो चैप्टर है इसमें हम बेसिकली आगे डील करेंगे गैसियस स्टेट के साथ। ठीक है, कि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं, आइडियल सिचुएशन क्या होती है, कुछ लॉज हैं जिनके बेसिस पे हम गैसियस स्टेट को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।